Hello, hi everyone. I welcome you all to the second episode of Meet Up with the Experts. First off, I'd like to thank you all for the overwhelming response that you had all given us onto our first episode of Meet Up with the Experts. And today I have one of my very dear friend who had helped me back in my law school days, and I thought there'd be no better person than him to guide you in your journey. I welcome Mr. Abhinav Kumar. Abhinav has appeared before the Supreme Court of India, Delhi High Court, and as various other tribunals. He is also one of the leading columnists and writes for various newspapers such as The Hindu, Business Line, to name a few. He has also had a teaching experience where he has taught at various national law universities and a few government-aided institutions such as University of Delhi, TIS Mumbai, and etc. Besides that, he's also working in the field of law and legal policy. We welcome you, Abhinav. Thank you so much, Janab. How are you It's doing, a Abhinav? pleasure to be here with you on your platform, and thank you. So, Abhinav, could you let us know that as to what was your journey in the field of law? Thank you for, in fact, asking me such questions. So, first of all, it goes back to the date. Basically, I belong from the state of Bihar, right? So, at that time, there was no information as such that there is something called as National Law University, right? So, I'm primarily talking about my college journey. So, starting from back then, so I got to know that, yeah, of course, there is some body which is conducting a CLAT. I mean, so they are conducting a law entrance examination that is known as a CLAT. So I decided to prepare at that time, and then, uh, of course, I made through CLAT, and then there was other law entrance examination as well. So I did my BBLLB honors from National Law University, Odisha. Then I did my masters from Maharashtra National Law University, Odisha. So of course, that was a good journey to start with the National Law University, because I think it gave me a lot of opportunity to explore myself individually and also in my to pursue my professional pursuits. Mhm. So, Abhinav, after pursuing your client, what was your journey there on? Like, how did you progress from there? Right. So, Janab, CLAT will give you a CLAT is just an exam, right? Or cracking National Law University exam is first journey. The real journey starts when you enter into the law college, right? Indeed, Or the indeed. law school, I must say. So it's a completely a totally a kind of environment, the peers, your friends, your batchmates. So when you meet them, so it's all of uh, uh, but all such things simultaneously and together it uh, gives us opportunity to develop ourselves and to nurture ourselves and to make ourselves into a professional, whether tomorrow whatsoever journey we are going to choose. I mean, in the terms of like our professional career, whether we wanted to go into the litigation, whether someone is interested to go into the corporates, Mhm. someone wants to join law firm, right? Someone wants to go for the government corporate, I mean government examination. So whatsoever. But again, that college environment, that college exposure will give you the ultimate opportunities so that you can make your pathway, you can choose your pathway, you can decide where you have to go on. Indeed, So indeed. I'm thankful that my college has given me very, in fact, good opportunities where just since I was debating in passionate in debating, and I used to debate a lot. So starting from the very first year, I got the opportunity to head uh, my debating society, also cultural society placement. So simultaneously, and then you proceed, and then simultaneously from internships to everything. So you make your way up. Indeed, indeed. That is there. Entering law school just marks the beginning of your journey into the field of law. Absolutely, Jana. So, Abhinav, if you, I may ask you that, what are those factors one should factor in before choosing law as a career option? हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें लॉ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? वो फैक्टर्स क्या हैं? हाँ, देखिए इसको ना ये अच्छा सवाल है इनफैक्ट, और बहुत बारीकी भी है इसमें कि ये आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं, इनफैक्ट अगर अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखा जाए तो क्लैट की तरफ बहुत ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन हुआ है. सो आई आई कैन नॉट सी दैट पैशन, दैट इंटरेस्ट, लाइक
द डे व्हेन वी वर राइटिंग क्लैट, राइट? बट आज के डेट में अगर कंपैरिजन करें अगर प्रेजेंट टाइम से, तो काफी ज्यादा लोगों का इधर इंटरेस्ट भी हुआ। इवन पेरेंट्स आर आल्सो सीकिंग, दे आर ईगर टू नो अबाउट कि क्लैट क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एग्जाम है अगर जिसका पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करें, लास्ट ईयर से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है। सो फ्रॉम 2020 onwards, CLAT is having a new pattern, right? So as far as the nature of this exam is concerned, so basically this exam is going to test your comprehensive skills, ठीक है? तो अगर आपको लगता है आप अपने आप को रिलेट कर पाती हो, अगर आप देख पाती हो कि नहीं, आप आने वाले समय में अपने आप को एक जज के रूप में देखना चाहते हो, अपने आप को एक कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में देखना चाहते हो, आप जन्म कॉर्पोरेट में थी, you are already familiar with the various nuances and the opportunities that is there in the law firms. तो अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में, जैसे आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं सूट से इंस्पायर्ड होते हैं, राइट? जो टीवी सीरीज है, तो इस तरह से अगर वो अपने माइंड में जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो बेसिकली टुगेदर ऑल दीज थिंग्स, वेदर आइदर दे सी समवन इन देयर सोसाइटी, या उनके पेरेंट्स को या कोई काउंसलर बताता है कि इस बारे में उन्हें चूज करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने आप को खुद कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है, और पढ़ाई में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये लॉ एक वैसा प्रोफेशन है कि इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो आपको ये करियर चूज करना चाहिए, और उसमें वो एक पैरामीटर हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि वन, आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए फील्ड में, एंड सेकेंडली यू शुड हैव दिस थिंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड रीड राइट, न्यू थिंग्स। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट हियर। एग्जैक्टली। तो इन फैक्ट वन सजेशन है कि सजेशन बोले या पॉइंट बोल लें, तो सजेशन ये है कि हाँ, पेरेंट्स को आज के डेट में, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो है, खासकर क्लैट जैसे एग्जाम को, तो इसको क्रैक करने के लिए हमें ये समझना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसके पैटर्न को फॉलो करते रहता हूँ, तो मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो अभी प्रेजेंट का जो क्लैट का स्ट्रक्चर है, वेदर whether it is for undergrad program or whether it's for master's program, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स पे आपका आपका जोर है, ताकि एग्जाम में भी जो क्लैट की बॉडी है ये चाहती है कि यू शुड बी अ रीडर, आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ रीडिंग हैबिट, if you are interested in reading, so you are going to select, or if you are going to, I mean, you are going to choose one such profession which will forever in your life, it will require that reading thing. So वो चीज अगर है, तो आपको इनकलकेट करना चाहिए, अगर नहीं है, और अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली फिर आप इस करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभिनव, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि एक रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना चाहिए, तो बाय रीडिंग ओवर हियर डू वी मीन बाय रीडिंग नॉवेल्स या रीडिंग न्यूज़पेपर्स, या लाइक किस तरीके की रीडिंग बच्चों को इंडल्ज करना चाहिए? राइट। देखिए जैनब, ये जो है अभी सवाल है कि जब बच्चे अगर क्लैट के लिए लिखते हैं, सो 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं, तो आज के डेट में अगर आप क्लैट को देखें, तो क्लैट एक्सपेक्ट करता है कि आप एक अच्छे जो शॉर्ट स्टोरीज हो गई, जो न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स हो गए, राइट? सो यू मस्ट इनकलकेट द हैबिट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीड, स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, you are reading the op-eds, right? So you are at least well versed with the happenings of your surroundings, कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है, आज देश में क्या हो रहा है, लीगल फील्ड में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सेडिशन के बारे में क्या बोला। जैसे अभी पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है सेडिशन के बारे में, काफी कुछ हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है? कि सेडिशन पे अभी लेटेस्ट हम लोगों ने देखा कि विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट भी आया था। इनफैक्ट अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि 75 ईयर्स होने को है, क्या सेडिशन आज भी रेलिवेंट है? तो अब इस तरह के जो टॉपिक हैं, तो आप उस पर पढ़ें, फिर उसके बारे में जानें थोड़ा सा, फिर उसके बाद लॉ के स्टोरीज पढ़ें, इन जनरल कुछ भी रीडिंग। सो रीडिंग से मेरा मतलब है यहाँ नॉवेल हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, ऑटोबायोग्राफीज हो सकती हैं, एडिटोरियल हो सकता है। सो दैट वाज माय सजेशन। जस्ट टू इनकलकेट बाय दैट हैबिट बाय डूइंग एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द एवेन्यूज जो भी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके ओके ओके। तो अभिनव, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मतलब आफ्टर यू डन योर लॉ, तो हमारे पास क्या एवेन्यूज हैं, लाइक आप जैसे, लाइक एज यू हैड टोल्ड कि लाइक यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड लीगल पॉलिसी विच इज नॉट रियली अ मच, पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट। तो कुड यू लेट अस थ्रू कि एवेन्यूज क्या अवेलेबल होते हैं आफ्टर डूइंग लॉ? जनाब, ये बहुत बड़ा सवाल है। लॉ स्कूल में जाने के बाद भी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि अल्टीमेटली लाइक व्हाट आई शुड चूज। जाने के बाद 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर तक सोचते रहते हैं कि व्हाट अल्टीमेटली दिस, राइट?
तो मुझे लगता है कि देखिए लॉ स्कूल में जाने के बाद जहां तक आज एवेन्यूज की बात करें, सो लॉ स्कूल इज प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ एवेन्यूज दिस डेज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, जो अगर हम बोले सो काफी लिक्विडेटिव होता है अगर आप इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू गो इनटू द लॉ फर्म्स, राइट। बट ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल दोज हु आर लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर दे आर फोकस, दे आर डिटरमाइंड कि नहीं उन्हें जुडिशियरी देना है या उन्हें यूपीएससी देना है, राइट। आज के डेट में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो काफी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं लॉ के। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में देख लें आप, जिस तरह से पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हुई है एंड एटलीस्ट लाइक आफ्टर 2010, राइट। सो जितनी कॉर्पोरेट की कंपनीज हैं दे रिक्वायर अ लीगल टीम, ए स्ट्रॉन्ग लीगल टीम, लीगल काउंसिल। तो उसमें भी काफी ज्यादा एवेन्यूज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर्स में काफी एवेन्यूज हैं आज के डेट में, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज हैं जहां पे भी आज के डेट में बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग लॉ स्कूल से आने के बाद आज के डेट में, जैसे अगर आप पॉलिसी में इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, राइट। सो पीआरएस लेजिस्लेचर्स है, उनमें फेलोशिप होता है पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो आप उस तरह के फेलोशिप को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है जुडिशियल क्लर्कशिप को भी, ये भी अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप जुडिशियल क्लर्कशिप के लिए जाते हैं, you can go abroad, you can pursue your masters, you can join academics, you can join again the policy issues। अगर पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इंडिया में आज के डेट में ना एक ये बहुत इमर्जिंग एवेन्यूज है, क्योंकि इंडिया बीइंग वन ऑफ द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, राइट। एंड हमारे कंट्री में पहले बहुत सालों पहले बहुत पॉलिसी पैरालिसिस था, या पॉलिसी को लेके देखें तो बहुत ज्यादा एक तरीके से गवर्नमेंट के मतलब मोनोपोलीज होते थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के। बट आज के डेट में वो जो चीज है वो देखने को मिल रहा है कि पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बहुत सारे थिंक टैंक्स, राइट, दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशंस विद द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इश्यूज। अगर जैसे अभी आईटी इश्यूज को ले हम लोग, राइट, जैसे आईटी को लेकर के अभी चल रहा था, तो मैं बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक से जुड़ा भी हूँ जिनसे के साथ मैं वर्क करता हूँ। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, दे हैव पब्लिश देयर रिपोर्ट, दे हैव सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो इस तरीके से बहुत सारे जो इश्यूज हैं उसमें पब्लिक पॉलिसी के रूप में आप क्या करते हो कि आप गवर्नमेंट के साथ, आपको फर्स्ट हैंड वर्क करने का मौका मिलता है, कई बार बहुत मिनिस्ट्रीज के साथ भी, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग थिंक टैंक के साथ। तो इस तरीके से अगर आप लॉ स्कूल में जाएं तो नॉट ओनली कि हम अगर लॉ स्कूल में हैं तो सिंपली मेरा जो ऑप्शन है वो सिर्फ लिटिगेशन होगा, ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर इनटू रीडिंग, इफ यू आर इनटू राइटिंग, इफ यू आर इनटू रिसर्च, सो आई थिंक जो लॉ स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि अगर अपने आप को आप फुली एक्सप्लोर कर रहे हो, इफ यू आर एबल टू इवॉल्व योरसेल्फ विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सो आई थिंक दैट द होल आइडिया इज टू इवॉल्व योरसेल्फ, राइट। सो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, बिकॉज आई बिलोंग from a very small place in Bihar, and my village is very far flung into the, एक जमाना था जब पटना से हमें जाने में घर पे 10 घंटे लगते थे, राइट। तो आज आप बताएं कि हम लोग जब वहां से जर्नी करके आए और उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, देयर वाज नोबडी इन माय फैमिली टू टेल मी कि लाइक लॉ में कोई था ही नहीं। सो everything, the whatsoever the platform, so I would like to once again thank to that university which helped me in fact। तो ऐसे करके जब मैं लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी वर्क किया, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी साथ काम किया, इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स के साथ भी काम किया, टॉप मिनिस्ट्रीज। तो ये उस प्लेटफॉर्म को हम थैंक बोलते हैं जहां पे अपने आप को जब इवॉल्व करते हो, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, एंड इफ यू आर एबल टू catch those opportunities, trust me, with all those experiences you can make yourself a strong professional with the passage of the time। ओके, अभिनव, यहाँ पे मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। लाइक आपने अभी बहुत कुछ पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताया, बट एज आवर व्यूअर्स आर वेरी young, they might not be knowing the meaning of this particular thing. So if you could just elucidate कि public policy as an opportunity entail क्या करती है, मतलब उस पॉलिसी मेकिंग में रहता क्या है, क्या नहीं रहता। राइट राइट राइट। देखिए पब्लिक पॉलिसी सबसे पहले होता क्या है, पॉलिसी इज लाइक हम उस चीजों के लिए पॉलिसी बनाते हैं जहां प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, राइट। तो पब्लिक से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, तो पब्लिक पॉलिसीज में जो है, तो आप अगर लॉ का नेचर देखें तो लॉ हमेशा से, लॉ क्या करती है, लॉ जब भी हम कोई टॉपिक पे लॉ बनाते हैं या किसी भी कोई चीजों से रिलेटेड जब अमेंडमेंट आता है या कोई पार्टिकुलरली अगर कैटेगोरिकली अगर हम लोग बोले तो उस किसी टॉपिक पे आज के डेट में हमें लगता है कि इस कंट्री में हमें उस पार्टिकुलर स्टेट में अगर लॉ की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस लॉ से रिलेटेड चीजों के लिए पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बारे में कमिटी बनती है, रिपोर्ट बनाया जाता है, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट लाइक वी आर एबल टू रिकमेंड दैट व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड।
तो हमें क्या लगता है कि हम उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट। जैसे अगर आप देखें लॉ कमीशन के रिपोर्ट आते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है कि बहुत, अगर आप यूएस में खासकर देखें तो यूएस में पॉलिसीज इशूज को लेके खासकर थिंक टैंक का जो रोल है, थिंक टैंक अगर मैं बोलूं तो उनका बहुत इफेक्टिव रोल होता है बहुत सारे इशूज को लेकर के, जो गवर्नमेंट के साथ वो काम करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज के साथ करते हैं, उनके द्वारा सपोर्टेड रहता है। तो इंडिया में भी आज के डेट में बहुत सारे जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, जैसे अगर आप सीएसआर देखें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है, वो चाहती है कि आप पर्टिकुलर एरिया पे काम करें। तो जब आप पर्टिकुलर एरिया पे काम करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका पूरा मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग, राइट। सो पॉलिसी मेकिंग एक हमारा पहला मतलब फाउंडेशन स्टोन है। आज के डेट में देखिए कंट्री में तो नीति आयोग, जो पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन होता था, तो नीति आयोग का जो आइडिया भी था पूरा का पूरा आज एक थिंक टैंक के रूप में, जो गवर्नमेंट और स्टेट्स के रूप में। तो ऐसे ही जो पॉलिसीज इशूज पे हमारे यहाँ जितनी थिंक टैंक्स हैं वो इस पे काम करती है, और बहुत सारे हमारे जो लॉ के बहुत सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे लॉ के अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं वो भी इस एरिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे थिंक टैंक के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के लिए थिंक टैंक के साथ काम कर रहे हो, कोई कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हो, कोई कई मतलब कई और भी लीगल इश्यूज जो है, बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, तो उनपे टाइम टू टाइम उनका ऑर्गेनाइजेशन जिस चीजों पे काम करता है तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस नुएंसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो ना अभी ना एज वी डिस्कस की एवेन्यूज आफ्टर लॉ क्या है, और आपने जैसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज भी बताएं, तो मेरे को जी एक चीज आप यहाँ पे समझाइएगा कि हाउ शुड वन अंडरस्टैंड कि उन्हें बीबीए एलएलबी लेना चाहिए या बीए एलएलबी लेना चाहिए, मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर कैसे, क्या हम चूज कैसे करें अपना सब्जेक्ट। जी। जैनब, ये ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि बीए एलएलबी परस्यू करना है या बीबी एलएलबी परस्यू करना है। ठीक है। तो मेरे सामने भी एक सवाल था, आपके सामने भी शायद रहा होगा जब जी आप जी। भी लॉ स्कूल में रही होंगी। हम्म। तो सबसे पहले हम इस चीजों को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं सारे जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और सुनेंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप तो ये माइंड से निकाल दो कि आप बीए एलएलबी और बीबी एलएलबी करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू परस्यू लॉ, राइट। जी सो वेदर इट्स अ बीए एलएलबी और वेदर इट्स अ बीबी एलएलबी, tomorrow you will be placed on the basis of your अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस लीगल सब्जेक्ट्स, राइट। एप्टीट्यूड। सो आपकी लॉ में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ग्रास्पिंग है, आपने लॉ में कितना काम किया है, लॉ के भी किस पर्टिकुलर एरिया में काम किया है, कॉर्पोरेट में काम किया है, आपने आईपीआर में काम किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पब्लिक पॉलिसीज इश्यूज में काम किया है, या अगर आपने लिटिगेशन में काम किया है, ठीक है। तो ये चीज बहुत डिटरमाइंड होती है कि आपने अल्टीमेटली 5 इयर्स में क्या काम किया है। अब सवाल जहां तक बी एल एल बी वर्सेज बीबी एल एल बी का है, तो ये नेवर एंडिंग डिबेट है, राइट। तो जी इसके लिए मैं बोलूंगा कि जैसे बीएलएलबी, अगर आपको लगता है कि अगर आप 12th में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या साइंस से हो, आपको लगता है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कॉमर्स थिंग, तो ये होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कॉमर्स से हो, आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है इफ यू फील कंफर्टेबल दैट यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद अकाउंट्स, ठीक है, उस तरह के जो पेपर्स होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हो, सो इन द इनिशियल 2 years जनरली इन द लॉ स्कूल दिस सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट, राइट। सो यू कैन चूज, यू कैन गो फॉर द बीबीए। अगर आपको ये भी लगता है कि लाइक यू आर डिटरमाइंड, आपको पहले से लगता है, बिकॉज दिस डेज आई एम सीइंग दैट सेवरल पेरेंट्स रिसेंटली, आई वाज टॉकिंग टू अ पेरेंट, राइट। सो ही सेड कि ही वांट्स, आई मीन हिज सन टू परस्यू लॉ, राइट, एंड देन ही आस्क्ड मी कि अभी क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो मैं बोला आप डिसाइड करें ये चीज। देन ही सेड नो, आई एम ऑलरेडी डिटरमाइंड कि मैं चाहता हूँ कि ये कॉमर्स ही करे, क्योंकि आगे चल के ये बीबीएलएलबी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कॉर्पोरेट लॉयर बने। सो इफ पेरेंट्स हैज ऑलरेडी made his decision, if he is already predetermined ki, so agar if you are like pursuing commerce and you are well versed, so you can go for the BBLLB. If you think that ki nahi aapka jo nature hai, you are more you can connect yourself with history, political science, economics, तो आप BLLB ले, लेकिन अल्टीमेटली आपको वहां पढ़ना लॉ है। सो BLLB और BBLLB के अलावा। जी 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 जी। ओके, तो अभी ना हमने अभी यहाँ ये समझा कि ठीक है बीए एलएलबी करो या बीबी एलएलबी करो, इन द एंड यू आर डूइंग लॉ ओनली, बट हाँ अगर राइट। आपका पहले से कोई एक स्पेसिफिक आप को किसी एवेन्यू में जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो अपने कोर्स को, दैट इज बाय बाय टेकिंग बीबी एलएलबी। एब्सोल्युटली। जी।
ये बात तो मेरे को समझ में आ गई, पर अभिनव अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि अब चलिए हमने कोर्स पे डिसाइड कर लिया कि चलो फाइन हमें बीबीए एलएलबी करना है या बीए एलएलबी करना है, वो हमने डिसाइड कर लिया। नाउ हाउ शुड वन डिसाइड ऑन टू लाइक विच कॉलेज टू गो फॉर? लाइक राइट। ऑब्वियसली फ्लैट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं ही, तो हमें ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि विच नेशनल यूनिवर्सिटी टू गो फॉर एंड विच वंस टू इग्नोर, एंड यू नो लाइक हाउ शुड वन सिलेक्ट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिट? Okay. So, with respect to this question, I must tell you, as far as when it comes to deciding a college, so whatsoever experience I have, I can tell you on the basis of that. तो आपके पास सबसे पहले दो ऑप्शंस हैं। अगर आप क्लैट दे रहे हो और आज के डेट में आईलेट, तो जितने लोग सिंसियर कैंडिडेट होते हैं वो क्लैट के साथ साथ आईलेट भी देते हैं, जी। राइट। तो आप सबसे पहले तो आप टारगेट करो एनएलयू के लिए कि वेदर एनएलयू दिल्ली है आईलेट के थ्रू या क्लैट के थ्रू जितने एनएलयूज है, तो कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है अच्छा कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन नॉट simply ignore the private institutions as well, right? So there are other institutions are also equally equivalent. I mean equally they are important and important. So with respect to that, अगर उनका हम करिकुलम देखें, उनके जो टीचिंग देखें, उनका फैकल्टीज देखें, तो वो लोग भी अपना वर्क कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका टारगेट है कि आप अच्छे एनएलयूज को आप टारगेट लेके चलो कि नहीं ये टॉप एनएलयूज है, टॉप 15 एनएलयूज है जहां मुझे जाना है। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो मैं प्राइवेट के भी ये कॉलेज हैं दैट आई कैन डिसाइड, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आप को क्लासिफाई एक तरीके से कर सकते हो। आप ना जब एग्जाम दे रहे हो उसके अलावा, और मैं एक और सजेशन यहाँ देना चाहूंगा कि चाहे वो एमएचसीटी हो आज के डेट में, जैसे मुंबई में अगर आप जीएलसी के बारे में, जन्म आप मुंबई में थी, यू नो द कॉर्पोरेट कल्चर देयर एंड राइट अगेन अगेन द वर्किंग, वहां पे जो कल्चर है, जिस तरह से इवन लॉ स्कूल में भी जो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे प्रोवाइड दैट यू कैन एंगेज in the I'm learning things. So basically they provide ample opportunities where you can go and intern. तो ILS पुणे है या जीएलसी मुंबई है या और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप या प्राइवेट के लिए आप बात करें तो मैं यहाँ किसी का पार्टिकुलरली नाम नहीं, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे आप अपने आप को कैटेगोरिकली आप एक अपना प्लान चार्ट बना लें कि हमें पहले इतने कॉलेज का एग्जाम देना है और उसमें से फिर अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली आप उसको फाइनलाइज करें। अच्छा, तो अभी ना यहाँ पे आपने जैसे बोला कि अपने आप एक टारगेट कॉलेजेस बना लें और उनके पीछे उनको आप परस्यू कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी देख सकते हैं। तो अभी ना ओवर हियर इज इट राइट टू कंक्लूड कि लाइक यू नो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर ऑन द इक्वल फुटिंग एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या इज दिस एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? जनाब ये भी एक बहुत टेढ़ा सवाल है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो क्योंकि बट क्योंकि ये दिस वन डिबेट क्वेश्चन ये इतना पूछा जाता है, तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या दोनों यूनिवर्सिटीज चाहे वो बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जरूर पूछा जाता रहा होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसमें काफी इनफैक्ट मुझे लगता है लोगों के मन में चलते रहता है। मैंने इनफैक्ट कई लोगों को देखा भी है अपने पीयर्स में कि अगर हो तो उनके माइंड में ये रहता है कि वो एनएलयू वर्सेस प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी। क्या ऑनेस्टली कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं। देखिए जनाब, आप मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा, राइट। सो आप एनएलयू से नहीं थी, लेकिन आप इंडिया के एक टॉप लॉ फर्म्स में आपको प्लेसमेंट हुआ, आपका प्लेसमेंट हुआ, यू गॉट द जॉब, यू गॉट प्लेस्ड इनटू द इंडियाज टॉप लॉ फर्म्स, राइट। यू वर्क देयर फॉर कपल ऑफ इयर्स, देन अगेन यू डिसाइडेड टू क्विट, राइट। अब यहाँ पे एनएलयू वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो डिबेट है, ऑफ कोर्स NLUs are the premier institutions, right? NLUs are the island in the ocean of law, right? So NLU जो है ये आपको प्रीमियम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। अगर जैसे हम कह लें कि आईआईटी ऑफ लॉ के समान है, या फिर जैसे आज के डेट में मेडिकल के लिए जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, या इंजीनियरिंग के लिए हैं, या जो भी गवर्नमेंट के, सिमिलरली फॉर द फील्ड ऑफ लॉ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अगर आप एनएलयू में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा प्राइवेट का कुछ ऐसा नहीं है। आज के डेट में मैं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करता हूँ, पार्टिकुलरली आनंद मिश्रा जी हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के, ठीक है। तो वो एडमिशन के मैनेजर हैं और उनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, और वो जिस तरह से एक्टिव भी हैं तो शेयर करते रहते हैं। आप बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देखें, इनफैक्ट और भी जैसे पुणे में है सिम्बोसिस की बात करें, या कई और भी कई जगह जितने भी हैं ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, तो अगर आप वहां पे जा रहे हो, एमिटी यूनिवर्सिटी है, तमाम बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, आई डोंट वांट टू नेम देम, राइट। सो तो क्या है कि अगर इन सबों के अलावा भी, तो कई बार जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं
Mhm. So apart from national law universities, I think it depends upon your own caliber. It Indeed. depends upon your own way of like, again मैं बोला कि ये पूरा का पूरा जो लॉ स्कूल का प्रोसेस है, जितना मुझे समझ में आया, मुझे लगता है ये इवॉल्व करना है आपको ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो एक फर्स्ट ईयर का लड़का था अभिनव कुमार और वो जो फोर्थ ईयर में जा रहा है या फिफ्थ ईयर में जा रहा है, क्या उसमें टाइम के साथ उसमें चेंज आ रहा है क्या? If that is happening, trust me, you are able to, you know, get whatsoever you have desired for and what was your ultimate objective. तो ये अगर आप प्राइवेट लॉ स्कूल की बात करें या एनएलयूज में करें तो देखिए करिकुलम हर जगह सेम है. यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द बीसीआई. सो बीसीआई इज द रेगुलेटिंग बॉडी वेदर यू आर इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एनएलयूज. सबको बीसीआई के नॉर्म्स फॉलो करने. अब सवाल उठते हैं एक्सपोजर को लेकर के, सवाल उठते हैं एकेडमिक्स को लेकर के, सवाल उठता है इंटर्नशिप को लेकर के, सवाल उठता है आप मूटिंग को लेकर के, सवाल उठता है डिबेट को लेकर के, सवाल उठता है कि आप रिसर्च पेपर राइट करें तो अपने आप को आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप अपने आप पे कितना काम करो. तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहते हुए भी, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि अगर जैनब जैसे जो लोग हैं प्राइवेट में भी रहते हुए अगर अच्छे इंटर्नशिप्स करते हैं, अच्छे रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो डेफिनेटली यू आर इक्वली एंड यू आर एट इक्वल फुटिंग विद एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, राइट. सो Indeed. अगर आप वो चीज करते हो, सो व्हाटसोएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव यू कैन. बट Indeed. थोड़ा सा हाँ अपर हैंड एक वो एक्सपोजर का है, तो Mhm. वो एनएलयूज में मिलता है क्योंकि वहां पे वैसे सराउंडिंग्स होते हैं. बट इवन देन इफ यू आर इनटू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि अगर वहां पे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ इंस्पायर्ड हो और अगर आप करना चाहते हो, तो वहां पे भी रह के आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है. इंडीड इंडीड, ये बात तो, ये ऐसी बात है जिससे मैं भी बहुत ज्यादा अग्री करूंगी. नो मैटर विच एवर, लाइक ऑब्वियसली यू शुड एम एट द क्रीम कॉलेजेस विच आर देयर इन द कंट्री. बट हाँ, ये है कि इफ एट ऑल आप वहां तक नहीं बना पाए हो, तो यू नो जस्ट यूटिलाइज वट एवर अपॉर्चुनिटी इज देयर एंड ट्राई मेकिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ इट. क्योंकि इन द एंड एब्सोल्युटली. वो ये नहीं देखते आप कहाँ से आ रहे हो. ऑब्वियसली दैट विल एक्ट एज अ बेनिफिट टू यू, बट ये रहता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज को अपने एडवांटेज के लिए यूज करो. So yes, that is there. Now, Abhinav, having spoken about the universities, the private universities and the government universities, मुझे एक चीज आपसे यहाँ पे और पूछनी थी कि like now be it like in any university that you are in, आप मुझे एक बात बताएं कि जो हम मार्क्स अटेन करते हैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, वो कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस के रहते हैं हमारा करियर ग्राफ डिसाइड करने में. हेलो जनब, मार्क्स क्या अटेंड किया, एक बार क्या आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर पाएंगे? जी जी जी, आई वाज आस्किंग कि अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि आप कहीं से भी करो, इट इज योर टैलेंट विच कम्स आउट इन द एंड. अब मैं आपसे राइट. यहाँ पे ये पूछ रही थी कि कॉलेज में जो हम मार्क्स अटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ट्राइमेस्टर्स सेमेस्टर्स, हाउ इम्पोर्टेंट आर दोज इन डिसाइडिंग योर करियर ग्राफ. राइट. देखिए मार्क्स का जहां तक सवाल है, सो मार्क्स आर, आई मीन सीजीपीए बोले या कॉलेज में जो जहां पे भी जो फॉर्मेट है, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट एक्सक्लूड दैट. अगर आप टॉप फर्म्स की बात करें तो अगर समटाइम्स यू नो some of the leading law firms have their own criteria that when they will come for the uh, डे जीरो. campus placement, right, और डे जीरो के लिए अगर आपके यहाँ आते हैं वो, so they will have their own parameters that they will only invite those people those who have got एक certain percentage कह लें या certain level of CGPA अगर उसके ऊपर है, then only you are equally I mean eligible to appear for their interview. So I think for that marks are very very important. But हाँ, लॉ स्कूल में मार्क्स जो है वो एक पैरामीटर है. अगेन वहां पे आप गए हैं अपने आप को टू मेक एंड टू डेवलप योर सेल्फ इनटू प्रोफेशनल, टू मेक यू अ प्रोफेशनल. बिकॉज ये जो डिग्री है, ये जो लॉ का डिग्री लेकर के आप निकलोगे लॉ स्कूल से, ये आपको एक प्रोफेशनल बनाएगा, एक वर्ल्ड के साथ आप कंपीट करोगे. तो मार्क्स जो है लॉ में एक हद तक, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट के लिए प्लान करते हो कि बीइंग एन एडवोकेट, अगर आप कल के डेट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अगर इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू द लॉ फर्म्स एज अ लॉयर, राइट, सो तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है. इन हाउस काउंसिल के लिए आपको शुरुआती समय में तो ये डिपेंड करता है. सीजीपीए कई बार आपको अच्छी जगह इंटर्नशिप दिलाने में भी मदद करता है, बिकॉज through your college internship and placement committee, those who are having a higher CGPA or the marks, they get the good opportunity to intern at a good place. Again, that determine and that decide the again the higher chances of getting placed at a good.
फर्म, गुड 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 प्लेस। सो अल्टीमेटली मार्क्स का एक रोल है, लेकिन ये कह देना कि मार्क्स ही सब कुछ है, ये गलत है, क्योंकि आप वहां अपने आप को आपको एक्सपोजर लेते हुए अपने आप को आपको इवॉल्व करना है, वहां अपने आप को आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे स्किल्स इनकलकेट करने हैं, सॉफ्ट स्किल्स इनकलकेट करना है। यू नीड टू अगेन अपने रिसर्च स्किल्स को बहुत अच्छा करना है, यू नीड टू नो हाउ टू रीड लॉ, वो करना है। तो ये सब तमाम चीजें मुझे लगता है कि जरूरत है इनकलकेट करने की। तो जी। अभिनव, यहाँ पे आपने एक चीज बोली है, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यू रिसीविंग द एक्सपोजर. तो बाय एक्सपोजर over here, do we mean internships or do we mean like other things also that you indulge in? Like for example, debates, moods, MUNs. Like what do we mean by this exposure? हाँ, देखिए, अब जो जहां तक मुझे लगता है कि ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है कि कई बार आप कॉलेज के थ्रू अच्छे जगह इंटर्नशिप करते हो, या फिर कॉलेज के अलावा भी अगर आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, राइट, सो यू कैन गेट, इफ यू आर लाइक मेकिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपने रिज्यूमे, और आज के डेट में अगर खासकर बात करें तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, दोज हु आर very active on LinkedIn, and जी जी. I don't want to name them, but again I have seen there are few students, तो वो कोई बहुत अच्छे कॉलेज से, इन दैट, फिर वही अच्छा खराब जो आप बोल रहे थे कि एनएलयूज है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ये कुछ अच्छा खराब यहाँ पे नहीं है। आप कोई ऐसे कॉलेज से भी हो, लेकिन जहाँ पे आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत एक्टिव हो, आप uh, उस रेस्पेक्ट में उस चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप अपने सेक्टर में जिसमें अगर आप एस्पायर कर रहे हो आने के लिए, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, उसमें जो लीडिंग पर्सन है उनको फॉलो कर रहे हो, उनके वर्क को फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी दे आर एबल टू गेट गुड इंटर्नशिप्स। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक ऐसा लड़का था कॉलेज में जो खुद से परस्यू करके अच्छे जगह इंटर्नशिप करने में बिलीव करता था। आई थिंक अगर आप कहीं से कांटेक्ट लेते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, सो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे वो आपके साथ। तो मुझे लगता है मैं एक ऐसा लड़का था जो इस चीजों में बिलीव ज्यादा करता था, Indeed, that is there. इस Even I फॉर्मेट में। believe so. राइट राइट। Abhinav, having spoken about this, मुझे एक चीज आपसे यहाँ पे ये जाननी थी. जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हम जो कहते हैं, जिनका कोई भी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं होता लॉ का, लाइक दे आर द फर्स्ट वंस टू गो अप टेक अप दिस फील्ड ऑफ लॉ, हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर देम टू मेक देयर मार्क इन द इंडस्ट्री? राइट। देखिए, I think I have already answered this question in my, while answering, I think uh, previously I stated that when you are, it hardly matters that from where you have started your journey, right? So if I'm starting my journey from a small village in the state of Bihar, like Madhubani district, and then I came across the national law universities, right? Similarly, you can. So, and there are other people as well. There are very, there are even as far as हम बात करें बहुत सारे एरियाज की, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और आज के डेट में वो लोग काफी बहुत अर्ली, वो जब लॉ स्कूल में आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर दैट उनका कोई एक्सपोजर नहीं था, इवन दे कांट फ्लुएंटली स्पीक द इंग्लिश आल्सो, राइट? और आज के डेट में इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ देम हैव क्रैक्ड देयर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, दे आर प्लेस्ड एट अ जज, right? They are doing, they are now able to produce a good judgment, they are able to write a number of orders, right? So ये डिपेंड करता है कि ये नहीं है कि आप कहाँ से आप आ रहे हो, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने इंग्लिश एजुकेशन में, मैं वही कहा कि अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो ये है कि लॉ स्कूल में जाने के बाद तो ये पूरी की पूरी जर्नी जो होती है, इट स्टार्ट व्हाइल क्रैकिंग द क्लैट or any exam with respect to the law entrance examination, whether it's a private institution or a government institutions. However, the most important thing is that if you are determined, if you are committed, that you want to perform well, you have to do good internships, you have to write good research paper, you want to publish your paper into a leading law journals, right? So you can definitely in the course or in the years to come, you will make your mark, right? You will be able to prove yourself. तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी फैमिली से आते हैं, इसके बजाय सिंपली अगर अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने हैबिट्स को, अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट करने पे काम करें, और जिससे आपके स्किल्स इंप्रूव हो, और जो ये लॉयरिंग अपना प्रोफेशन है, जो आप लॉ परस्यू करने जा रहे हो, तो अगर लॉ फर्म में काम करना है तो लॉ फर्म्स के लिए क्या स्किल्स, सेट ऑफ स्किल्स है जो हमें जरूरत पड़ेगी, एंड व्हेन आई एम सपोज से कि आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, राइट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राइट, सो व्हाट आर
the skills that will be required there, तो उस पे हमें क्या काम करना है. When I am saying that I am working into the public policy, तो हमें क्या रिसर्च करना है, हमारी राइटिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हमें उस चीजों पे काम करना है. अगर हम कल के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगेन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द डिमांड ऑफ द nature of examination, and where again ultimately like you are planning to go, right, after passing out from your law school, after completing your journey in the law school. So I think that will mainly decide your career and your success, not where the family or not XYZ कि आप किसको जानते हो और नहीं जानते हो. Yes. That's really amazing, and I think आपके इस statement ने बहुत ray of hope दिया होगा to a lot of students, because you know I keep receiving these questions कि मैम I'm not really fluent with English, मुझे इतना अच्छा command नहीं है, तो can I really go for law and XYZ. अगर जैसे अभिनव ने कहा, I would also again say the same कि अगर आपके पास कोई स्किल है नहीं अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे वो स्किल अटेन नहीं कर सकते हो. आप, बहुत से लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग अभिनव, मी एंड मेनी अदर्स ऑफ आवर peers, कि उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट होता नहीं है, बट वो विद टाइम डेवलप हो जाता है. आप अपने आप को उस हिसाब से अगर ट्रेन करो तो. Absolutely, सही कह रही हैं जनाब आप बिल्कुल. With the passage of the time, you have to inculcate good habits, all those Exactly. skills that you want to, which are again required for your area and for where you want to practice, where you want to, again operate. So accordingly, वो आप में होना चाहिए. और क्योंकि एक मूवी का डायलॉग भी है कि आज के डेट में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा. सिमिलरली अब ये कह देना कि नेपोटिज्म की वजह से एनीवन हु इज कमिंग एंड सपोज से दे आर एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है. खासकर लॉ स्कूल में हमने देखा है. ऑफ कोर्स एट टू अ सर्टेन एक्सटेंट दोज पीपल दोज हु आर हैविंग अ बैकग्राउंड इन द लॉ, ऑफ कोर्स दे विल बी हेल्पफुल, right, they will help them to at least. But if you are not hard working in this field, you cannot survive. So most importantly, you have to be very very hard working, and then at the same time, if you are working on all those things which I have already told you, like मेरा यहाँ learning, पे आपसे reading. थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सवाल है. जैसे अभी आपने इस पूरे इंटरव्यू में काफी ज्यादा एक्सपोजर के ऊपर फोकस किया, एंड देन यू नो वर्किंग हार्ड इन द लॉ स्कूल एंड मेकिंग योर मार्क इन द इंडस्ट्री पे फोकस किया. अब मेरे को यहाँ पे एक चीज आपसे समझनी थी, दैट यू नो हाउ शुड वन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स. क्योंकि आई रिमेम्बर बैक इन माई लॉ स्कूल डेज ऑल्सो आई यूज टू सीक गाइडेंस फ्रॉम यू, दैट अभिनव हाउ शुड आई डू, व्हाट शुड बी माई अप्रोच. So if you could guide our audience also that how they should proceed, like you know once they are into the law school, what should be the Right. procedure for attaining those internship with big fat law firms, if Right. at all. So अगर निमा right. करना है तो जी. Thank you, Janab. So with respect to this question, I think the best way is that this is again always in any whether you are the part of any national law universities, whether you are a part of any other law school as well, right? So this is again the same problem that exists everywhere, that everyone wants to get good internships opportunities, and again at the same time when you will be writing to them. So again this is one of the very a common difficulty you can say that is being faced by and experienced by every students in fact. So according to me, the best way to get good internship is to first of all decide the area, right? First of all, as I told you that law school is all about exploring, right? So start your internships from the very first year. Like first in the very first year, start with some government regulatory bodies, some government departments, with some NGOs, some think tanks, right? So where you can work, you can understand the system, that how a system operates. When you are in the very second year, so you can work with trial court or the high court at least, where you can see again the procedure of the court, that how do court operates, right? And after that you can decide, suppose say if you are genuinely interested in the law firms, right? Suppose say you have already made your mind that you wanted to go into the corporate sector, like someone who are interested to uh, that person has to go to litigation side, right? That person has to practice as an advocate. तो आप उस चीजों पे काम करो. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब्रॉड जाना है, अगर इफ आई वांट टू आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू go and pursue my masters from and any other leading institutions, right? So accordingly आप उसके accordingly काम करना शुरू करें. तो इंडिया में रहते हुए अगर आपको इंटर्नशिप करना है, तो पहले मैंने बोला एक सिलेक्शन ऑफ योर सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप आईपीआर में काम करना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो, आप आर्बिट्रेशन में काम करना चाहते हो, आप किस सेक्टर्स ऑफ लॉ में काम करना चाहते हो आज के डेट में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं.
कि और उस फील्ड के जो फिर लीडिंग है, जैसे आज के डेट में लिंक्डइन बहुत एक प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट ईयर से लिंक्डइन जैसे साइट पे अगर आप एक्टिव रहते हो, आप अपने प्रोफेशनल्स उनसे कनेक्टेड हो, उनसे शेयर करो, उनकी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो, उनको अप्रिशिएट करो, रीड देन राइट अ मेल टू देम, आस्क फॉर देयर ईमेल आईडी, then simultaneously you can ask them ki sir I wanted to intern under you, you can contact any partner, you can call them, right? So I think if in this way, if you're like operating, if you are able to first of all write down or to do some little bit of research with at least with the area in which you wanted to work, right? तो मैं ऐसे किया करता था, मैं उस अपने एरिया से रिलेटेड लोगों के फोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडी, उनके नाम लिख लिया करता था, कई दफा उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश करता था, बात होती थी, फिर ये बोलते थे कि आप इस टाइम में इंटर्नशिप कर सकते हैं हमारे साथ, नहीं तो कम से कम आप एक अच्छा मेल लिखिए उनको। और अगेन द राइटिंग ईमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग को, बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि हम ईमेल कैसे लिखते हैं। सो आप मेल लिखते वक्त ना आप बहुत टाइम लगाएं, जस्ट टेक whatsoever time that is required, but take an ample, take a good time and then draft a very good email, because that email, that words, selection of words are having again a very very important uh, 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 aspects as well, or it is also an important factor that can decide कि वो आपके words हो सकते हैं, अगर convincing words हैं तो आपको अच्छे internships पाने में मदद कर सकते हैं, right? एक और चीज मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। अभिनव हैज मेंशन्ड अबाउट कॉलिंग द पीपल। प्लीज डू नॉट बी हेजिटेंट व्हेन यू वांट एन इंटर्नशिप। प्लीज डू नॉट बी हेजिटेंट ऑन कॉलिंग अप पीपल एंड आस्किंग देम फॉर इट, बिकॉज अनलेस आप ये बोलोगे नहीं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, हाउ विल पीपल गेट टू नो? सो डू नॉट बी Absolutely. हेजिटेंट, go after things that you really want, and it will work, it will definitely work, because आप उससे अपना expression of interest देते हो, सामने वाला ये देखता है कि आप कितनी ज्यादा उस चीज के लिए inclined हो। तो many a times it has worked for me, and I'm pretty sure that it has worked for many other peers of mine too. So please do not be hesitant on calling up people, and try interning in every field that is there, and फिर आप देखो कि आपका interest actually कहाँ lie करता है। अच्छा अभिनव, ये with बिल्कुल this, जनाब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। ये इनफैक्ट ये आज के डेट में आपको हेजिटेंट रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। यू नीड टू लर्न दैट थिंग। जी। अभिनव, अब इसके बाद मुझे बस एक आपसे ऑलमोस्ट दिस इज माय लास्ट लास्ट सेकंड और लास्ट क्वेश्चन, कि नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द मोस्ट sought after fields in the field of law, I feel is that ki one is litigation and the other one is corporate. Now, could you tell us if at all there are any challenges which one has to face if one enters into litigation or into corporate? Okay. So, Janab, yeah, as far as my understanding is concerned, because I have seen both the thing very closely, I'll tell you. So, as far as litigation is concerned, अगर इसको हम modus operandi बोले, so अगर litigation का जो functioning है, इसका जो modus operandi है, again, it's a very different, right? So, as an advocate, you have again a different challenges, right? So, यहाँ court system में आप का अलग रिक्वायरमेंट है, अलग सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत है, बट व्हेन इट कम्स टू अ लॉ फर्म लाइफ, राइट, सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड researcher, you have to again that time consuming, और आप उसका जो अगर आप देखो, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में रहे हो, सो यू कैन अगेन टेल द व्यूअर्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो मुझे जहां पे लगता है कि अगर आप लॉ फर्म्स के लिए चाहते हो, अगर आप लॉ फर्म्स में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, तो आपके लिए वहां पे जो सेट ऑफ स्किल्स है, जो चीज चाहिए होंगे, वो वही है, आपका रीडिंग है, आप काफी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको काफी ज्यादा, आपको जो लॉ, अगेन आप अगेन द एरिया इन विच you wanted to practice, because there is a lot of competition, right, as far as, because at least अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या कोई भी जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं, प्राइवेट अगेन या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा भी, तो आप देखोगे हर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट स्कूल से आज के डेट में, अगर मुझे लगता है कि पर ईयर अगर आप डेटा, आई कैन नॉट कम अक्रॉस द एग्जैक्ट नंबर, बट अगेन आई कैन टेल यू कि जितने नंबर ऑफ लॉयर्स आज के डेट में निकल रहे हैं, उनके कंपेरिजन में अगर आप देखो लॉ फॉर्म्स के जो जॉब्स हैं, राइट, एटलीस्ट अगेन इन द top law firms, so that is very very less, right? So hardly any जो टॉप लॉ फर्म्स हैं, दे डोंट, अगेन एक सेट ऑफ नंबर से ज्यादा वो नहीं लेते, उनका अपना पैरामीटर्स, तो उसके रिगार्डिंग यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड, इन यू हैव टू बेस्ट इन योर एरिया। सो बिफोर coming to your fifth year, I think you should be able to at least work, I mean, you should be able to do a good work in that area, whether again from writing to mooting to internship, so whatsoever sorts of, whatsoever can be the medium, but again that will ultimately lead to the
गेनिंग ऑफ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, जिससे आप उस लॉ फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, उस एरिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जो क्योंकि बहुत सारी लॉ फॉर्म्स है आज के डेट में, उनका एक पर्टिकुलर एरिया है, जिस जिस पर्टिकुलर एरिया पे ही उनको लॉयर चाहिए होता है अपने। ठीक है, इसी तरीके से तो ये दोनों डिफरेंस है कि अगर आप लिटिगेशन में आते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट ऐसा कुछ नहीं है, इन जनरल है। यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम यू कैन ग्रो हेयर, बिकॉज इट्स हैव इट्स ओन यू नो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस अगेन, जिसको आप ब्रीज नहीं कर सकते हो, विच इज अगेन टाइम टेकिंग, राइट। बट लॉ फॉर्म का जो है वो थोड़ा सा एक अलग सिस्टम है, एक अलग सेटअप है। हम्म। तो आई थिंक यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि चैलेंजेस दोनों ही चीजों में है, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, या चाहे वो कोई और भी एवेन्यू है, जैसे और भी आपने बोला। एवेन्यूज। बस हमारे हाथ में ये है कि यू नो वट एवर, जस्ट होन योर स्किल्स एंड ट्राई बीइंग द बेस्ट इन विच एवर फील्ड यू चूज टू बी। आई थिंक ये एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। तो अभिनव, विद दैट आई थिंक वी कंक्लूड टुडेज इंटरव्यू। बस मुझे आपसे एक लास्ट चीज पूछनी थी कि यू नो व्हाट इज योर message to all the CLAT aspirants who are going to write their exam on this 23rd and obviously in the coming years too. तो आपका उनके लिए वो मैसेज क्या है? How should they approach an XYZ? जी. So first of all, I would like to thank everyone for their patience listening, and in fact to all the viewers. Uh, and I would like to give them the message, especially to all the CLAT aspirants and all to all those people, those who are uh, preparing for any law entrance examination, that apart from clearing an exam, there is always a way ahead, right? So success अगर बोले या फेल्योर, दोनों के बीच से हमेशा हमेशा जो चीज पे अभी मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान में जो चीज बात हम लोग ये बातचीत के दौरान जो मैं बात को इम्फेसाइज कर रहा था, देर इज ऑलवेज ए स्कोप, राइट। एंड यू कैन ऑलवेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में आज के डेट में, वो है स्किल्स आप एक्वायर करें, अपने हैबिट्स पे, अपने रीडिंग्स पे काम करें। ठीक है, और क्लैट के लिए जहां तक है कि क्लैट इज ऑन 23rd, सो आई वुड लाइक टू convey my best wishes. Don't panic in the last moment, just try to revise whatsoever, because revision is again a very very important key as far as any competitive exam is concerned, right? So whatsoever, don't try to read anything new, but again rely on the revision part, and at least when if we can see the new pattern, so accordingly try to cover as maximum topic you can, so that it will help you to form your opinion, so that at least during the examination you can uh, again it will be very very helpful to you to attempt that question in a very effective and in the efficient manner. So wishing you all the very best with respect to all your exams, and do good, all the best. Thank you, Abhinav. Thank you. And I would also like to thank you for taking out time for us in spite of the fact that you had such a hectic schedule today, meetings after meetings. So, you know, I'd really like to thank you for making out time for us. And I believe सबको इससे बहुत ज़्यादा benefit होगा, जितने भी उनके सवाल थे या questions थे या doubts थे वो सब clear हो गए होंगे. Thank you for coming. थैंक यू जैनब, थैंक यू। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस Same. इंटरेक्टिंग इनफैक्ट, और काफी चीजें मुझे लगता है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Bye, Abhinav.